Assalamu alaikum and welcome to the show, Back to Bahria. As you all know that Bahria University has initiated this idea where we invite our alumni to share their experiences and their journey which they've had. My name is Hira Muzaffar. I will be the host of the show. I am working as Deputy Manager HR in Kohinoor Textile Mills. I'm also an alumni and I did my BB and MBA from Bahria University. So the guest who we have on our show has amazing diversified experience. He is an entrepreneur. He has innovated different ideas. He has worked with different telecom and tech startups. Mr. Majid Aziz, welcome to the show. Thank you. How are you? I'm good. First of all, sir, thank you very much for taking out time. I know बहुत मसरूफियत होती है और दफ्तर के काम से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है. So वही सवाल जो हम सबसे पूछते हैं. How do you feel coming back to Bahria? Absolutely amazing. The nostalgia that I've been experiencing since I've come back is astonishing, and of course, अच्छा लगता है. It's changed a lot since the last time I was here. But you know, a lot of memories, a lot of good memories. Okay. So what are the good memories? अगर हम memories से बात करें. So many good memories, like from every aspect of life, from the teachers to students to friends, everyone. All the experiences were life changing. और teachers की भी बात करें तो उनके भी सारी चीज़ें memories classes याद आ रही हैं. From students, how we hang out and how we tackle difficult times and a lot of things. So good memories from all aspects of life. अच्छा, so बाकी बातें तो होते रहेंगे. मुझे ये पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि why did you choose Bahria University? Well, Bahria is, I would like to say was at that time, but still is a good platform and a good place to be. It's pretty much, close and near dear to my home, Islamabad, and it offered a lot of diversified experience. So university is not supposed to be just, core hard work. It has to have a lot of elements of different things in life. So Bahria offered all of those things. So that's why I chose Bahria. Okay. So अब जब आप आते हैं, आज आप एज गेस्ट आए हैं, थैंक यू सो मच. और जब आप एज स्टूडेंट आते थे, व्हाट डिफरेंस डू यू फील नाउ एंड बैक देन? रास्ते में गार्ड से ज़्यादा तंग नहीं किया. और उस वक्त कैसा था? बिकॉज जब आप स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट होता है, और आज जब एज गेस्ट आते हैं, बिकॉज आप एज इनवाइटेड, आपने कहा जैसे गार्ड ने तंग नहीं किया. सो जो फीलिंग होती है कि कि what pride it brings you coming back to Bahria? बहुत ज़्यादा प्राइड वाली फीलिंग है. बिकॉज कमिंग बैक टू हेयर, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम व्हेन यू लेफ्ट, आपके ज़िंदगी का चलता रहता है एंड यू रियलाइज कि यार ये वक्त तो ख़त्म ही नहीं होगा. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ द क्लासेस एंड टास्क, ऑल ऑफ देम एंड देन यू लीव फॉर गुड एंड यू डोंट थिंक अबाउट कमिंग बैक. फिर लाइफ happens or you kind of forget about thing, everybody goes apart. तो अचानक जब आप वापस आते हैं, so एकदम एक बड़ी प्राइड फीलिंग है कि you are coming back, being honored for doing something which you did not know at that time कि आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि you're coming back as to present something, to give back. Right. अच्छा, so academically, when did you graduate? आपकी specialized degree क्या थी? We would just like to know a little glimpse of as a student life. कब start किया? किस year graduate हुए? So I started initially my software engineering, bachelor in software engineering. Okay. और I think I graduated at that time in 2005. My memory might be a little foggy. Okay. Don't remember कि कब जान छुटी. Okay. तो 2005 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. फिर उसके बाद वर्क लिटिल वाइल विद डिफरेंट टेक स्टार्टअप्स, और फिर उसके बाद आई केम बैक फ्रॉम एमबीए, और फिर एमबीए भी किया. तो व्हिच इज अ टेस्टमेंट की कितनी यूनिवर्सिटी पसंद थी. और फिर एमबीए करके आई बिलीव 2007 या 8 में आई ग्रेजुएटेड, देन वर्कड इन टोबैको इंडस्ट्री एंड देन फ्रॉम देयर टू टेलीकॉम इंडस्ट्री in different fields of business intelligence, big data and things like that. Achha, so you are also an entrepreneur. You've innovated different ideas. So how did this entrepreneur passion rise in you? क्या inspiration थी? किस तरीके से ये inspired हुआ? क्या था? I mean, what was the idea behind being an entrepreneur? इसमें बहरिया का काफ़ी बड़ा हाथ है. लाइक यू लर्न कि अच्छा यार चीज़ करनी है, लेकिन चीज़ करने के हज़ार तरीके होते हैं. सो यू डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स. और जितने रूल्स सख्त आते थे, एंड ऑफ कोर्स एट दैट टाइम यू जस्ट क्रॉसिंग योर टीम्स एंड यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट बट गेट थिंग्स डन. तो वो वहाँ से ही सीखते सीखते कि हाउ टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, वो चीज़ एक एंटरप्रेन्योर की आइडिया को क्लिक कर देती है. तो जब प्रोफेशनल लाइफ में भी गए तो वहाँ पे भी हम देखा कि यार थिंग्स कैन बी डन डिफरेंटली. फिर जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड में जाते हैं, एट दैट टाइम आई सॉ कि यार बिग डाटा और ये जो चीज़ें हो रही हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड प्राइवेसी एंड कम्युनिकेशन जो कि एक आम पब्लिक को नहीं इतना अंदाजा. तो वहाँ से भी लोग इंस्टेंट के यार बैठ के शोर करें एंड जस्ट राइट एन ईमेल एंड बी डन विद इट एंड एक्सप्रेस योर कंसर्न्स, व्हाई नॉट डू समथिंग अबाउट इट. सो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि ओके इनफ टॉक, लेट्स डू इट.
सो बस वहाँ से शुरू हो गए और इट वाज यू नो टफ बट अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि जो बहरिया ने ना ये हमें बड़ा सिखाया है, क्योंकि एकेडमिकली तो हम सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, पर जो बहरिया हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो हमें इंडल्ज करती है ना, जैसे डिफरेंट जो स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर है, हमारे करियर ऑफिस है, इसको तो हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो यू राइट, उससे जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड है ना, बहरिया स्टार्ट्स, इट मेक्स यू थिंक लाइक दैट। सो यू आर वेरी राइट कि बहरिया में जब आप नॉट एकेडमिक्स, so हम लोगों ने जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, इट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस, यू नो, बिकॉज थिंकिंग टू द एंड, बीइंग प्रोएक्टिव, यू नो, आइडिया तो आप परसीव कर लेते हैं, पर जो उसकी एग्जीक्यूशन है, सो वंस you're in the circle, it helps you. So मुझे अपने इनोवेशन के बारे में बताया गया, what different idea you've innovated, because we would like to know कि our alumni they are doing so well कि आप नौकरी तो करते हैं, you know, you are doing something, but you have an idea, you foresee something, you see कि there is a need in the industry or in the market, और आप उस पर काम करते हैं। तो we would like to know this innovative journey, how was it? well, ये जो रेबेलियस एलिमेंट है ना, वही पुश करता है कि अच्छा अब करके दिखाना है। सो वो बहरिया ने जो एक होता है ना कि रेबेलियस एलिमेंट अपने सही पुट किया कि उसको ग्रूम करता है, जो यू हैव टू यू नो डू इट। तो वो उसी चीज़ ने किया कि अच्छा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यू गेट ऑक्यूपाइड, रिसोर्सेज नहीं होती हैं, टाइम नहीं होता, बट वो फिर जो एटीट्यूड होता है कि अच्छा फिर ठीक है, फिर जो मेरे पास अपना टाइम निकलेगा मैं उसमें करूँगा। फिर रात को बैठ गए, वीकेंड्स को बैठ गए। सो द आइडिया दैट यू मेंशनिंग इज ज़ैपबडी, द चैट ऐप दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन। और वही जिस तरह हमने जब फोरसी किया कि यार प्राइवेसी में इशू होगा और देयर विल बी अ नीड फॉर अ गुड अनदर चैट ऐप जो कि इन चीज़ों के कंसर्न को एड्रेस करके पहले से बैठी होगी। सो वो हमने कहा ओके लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सो इट्स ईजियर सेड देन डन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट वही है कि कई दफ़ा बीच में हुआ कि जस्ट गिव इट अप एंड यू नो वाकई इट्स अ ह्यूज टास्क। लेकिन वो था कि हार मानने वाली आदत तो थी नहीं, तो बस फिर जुड़े रहे, लगे रहे, लोगों ने साथ दिया, कुछ छोड़ के चले गए, but you know not giving up or trying to prove a point and you know getting to it. So फिर finally I got to where you know we wanted to be, and alhamdulillah now that it's been launched immediately, the way things are changing now, it's becoming very very relevant, and now दुनिया को नजर आ रहा है कि this is why we were you know making all the noise. So it's you know showing its worth. So you were the brains behind this entire idea. Yeah, you can say that. That's good. That's commendable. So, अच्छा, जो previously को जब आपने foresee किया कि ज़रूरत है, what were the struggles? What were the hardships? You know, because जब idea आता है लोग कहते हैं फजूल idea. You know, लोग discouraging तो बहुत होती है, बड़े कम होते हैं जो आपके साथ कहते हैं चलो यार we are with you. तो कितनी hardships feel हुई और उसने आपको कितना impact किया? डिफरेंट किस्म की हार्डशिप्स थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पैक्ट किया, क्योंकि एक तो जैसे हमने बताया मॉरली, लॉट ऑफ पीपल यू नो डीमोरल, यू के ओ यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उसका आप का मुकाबला कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग, एंड टू सम एक्सटेंट देयर राइट, बट यू नो इस तरह हार मान के बैठ जाना इज़ नॉट द आंसर। तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप तो बचकाना बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, नहीं कर सकते। सो एक वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर भी होता है। अगेन उसको भी हमने लिया कि ओके वील ट्राई टू यू नो कवर दैट फैक्ट, इंस्टेड के उसको देके एज अ शो स्टॉपर लेके हार मान जाए, ट्राई टू कवर इट। देन कम्स द टेक्निकल पार्ट, वो भी बहुत हार्डशिप्स थी, बिकॉज ये बातें कहना बड़ा आसान होता है, अच्छा यार पूरी चीज़ इस तरह बना दो, एक जो बहुत बड़ी जाइंट कॉर्पोरेशन हुई और उसमें ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह कर दो। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। Many people gave up because you know you need, it's a very resource intensive thing। और फिर वीकेंड्स को बैठना, रात को बैठना, बेसमेंट में गैराज में मैंने बना के जगह उधर बैठना शुरू हो गया, जहाँ पे सारे दोस्त अपने घरों के काम छोड़ के, प्रोफेशनल लाइफ में यू गेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आपका अपना टाइम होता है, तो उसमें ना सिर्फ मैं अपना टाइम भी ख्वार करूँ बल्कि अपने साथों और को भी मिलाऊंगा, यार तुम भी मेरे साथ करो। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन एक जब कोई प्रिंसिपली एग्री कर जाए ना कि करना है एंड वी सी कि हाँ यार दिस थिंग कैन वर्क, तो वो फिर मोटिवेशन ला के करना, इट वाज अ डिफिकल्ट वेरी हार्ड थिंग टू डू, बट यू नो वी डिड इट। अच्छा, एक और चीज़, एक सवाल इसके हवाले से, व्हाट वाज दैट वन एलिमेंट दैट केप्ट यू रनिंग? एक होता ना कि आप, एक तो सोसाइटी में नीड है आप अपने लिए, one thing that was inside you, you know, that's for me, you know, this thing has to be done. What was that one element or that instinct that kept you running? What was that? It was privacy. Like because it means you are a very private person and you really support. I mean, you like. No, I'm not a very private person. Okay. But you know, industry-wise, you see कि अच्छा things अभी इस तरह चल रही हैं, and everybody is going with the flow. अच्छा यूं होता है, यूं होगा और इस तरह जाके रहेगा. But then you see a major twist in market coming, and that you know foreseeing it, and पूरी दुनिया वो नहीं देख रही हो कि back in 2014-16 हर बंदा यू नो nobody cared about privacy और nobody could even be bothered about it। जब मैं कहता था कहते यार who cares about it, सबको पता है it's free and you know you're the product, nobody really had the idea कि यार इसकी pushback जब आएगी how serious it can be।
सो वो जो एलिमेंट था ना कि दिस थिंग विल हैपन, सो वो पूरा एक आप कह लें जो एक एंड ऑफ टुमारो में एक पागल सा बंदा नहीं होता जो कहता रहता होगा होगा मैं बता रहा हूँ. सो इट्स दैट थिंग एंड दैट केप्ट अस गोइंग कि यार वी न्यू इट्स गोना हैपन. And fortunately it's happened quite frankly sooner than even predicted. Yeah, but the thing is कि now it makes sense and we say oh अच्छा हाँ we never saw it. तो हम इसके कहते हैं हम तो कह रहे थे आपको पहले. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, जब कोई चीज़ हो जाती है ना देन आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है. सो आई एम श्योर टुमारो इफ एनीबॉडी एल्स लाइक टू बी एन एंटरप्रेन्योर और इनोवेट समथिंग दे कैन कम टू यू कि व्हाट डू यू थिंक तो फिर आपकी से में ज़रा एक वजन पैदा हो जाता है. कहते हैं पहले तो कोई मानता नहीं था, अब आपको सारे मेंटर गुरु मान सकते हैं. तो हैज इट हैपेंड? I hope so. It should happen, but not now. Okay, until you haven't made a lot of money, I think your valuable advice won't really that valuable. Okay. So, but it does have an element of pride to it. कि making a bet to it. Office में हर बंदा बैठता है, टी साइड पे, स्मोक कॉर्नर पे, हर बंदा दुनिया जहान की बातें करता है. But the only difference between that I would suggest to everybody wants to be entrepreneur is कि when you put your money where your mouth is, फिर उस टाइम ना वो सारे साइड पे हो जाते हैं. सो वो सब बातें ही होती है, कोई इस पे कमल नहीं कर सकता. अमल करने का कहने तो फिर पता चलता है कि हाउ सीरियसली डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, एंड दैट ऑनेस्टली बहुत ज्यादा लोग नहीं बहुत कम लोगों में होता है. बातें करने वाले बहुत होते हैं लेकिन एक्शन बड़े कम लोग लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, तो मुझे पता है व्हेन यू मीट पीपल आउटसाइड इन सोशल गैदरिंग और यू गो आउट और एंड अटेंड डिफरेंट इवेंट्स एंड इफ यू मीट अ बहरियन, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक तो वैसे इस वजह से टाइम ही नहीं निकलता ज़्यादा आउटगोइंग का, प्लस विद द होल पैंडेमिक सिचुएशन तो आउटिंग बहुत कम है. बट इससे पहले भी आफ्टर ग्रेजुएट जब भी को मिलता है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ camaraderie टू इट कि जब आप यहाँ पे होते हैं यू नेवर सी ईच अदर एज peers, आप स्टूडेंट्स, competition, things like that. But you grow up and you realize कि life में these were the beautiful moments, and when you meet you see कि okay this is what their new struggles have been, this is, and your struggles are completely different. उनकी लाइफ के कुछ और मसले मसाइल हैं, but एक वापस आना and then to reconnect किया जब कोई पुरानी memories होती थी, if you start from where you left, it's a very nice feeling. बिल्कुल. अच्छा, तो और एक चीज़ होती है ना जब आपके जो आपको भी मिलते नहीं है बट जैसे अभी हम शो से पहले कहते हैं कि अच्छा आई थिंक आई हैव सीन यू, सो बहरियंस का ना वो चेहरा बड़ा वाकफियत, गायबाना वाकफियत हो जाती है, गायबाना से ताल्लुक सा होता है. सो सारी जगह की जगह कैद रहे ना तो साथ ही कैदियों की शक्लें याद हो जाती हैं. बिल्कुल. अच्छा, एक और सवाल. अब आई वांट टू टेक यू बैक टू योर यूनिवर्सिटी डेज एंड आई वांट यू टू थिंक how were you as a student and what memories you have? I mean, कुछ किस्से होते हैं ना, कुछ टीचर्स याद होते हैं, कुछ टीचर्स की डांटे, कुछ टीचर्स कैसे किस्से याद होते हैं. So anything you would like to share with the students or with us? मैं अच्छा शरीफ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं था. Okay. I would like to say मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था and I was I got very nice CGPA as well. I was doing a 3.92 but back in my despite being not a good student. Despite but in my software engineering I was doing very poorly in the beginning. Okay. So मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था. बट उस टाइम ऑफ कोर्स अब टीम्स में आते हैं, शरारतें होती हैं एंड मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ के जो टीचर्स थे बहुत अच्छे सपोर्टिव थे. दे फॉरगिव अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड टुडे वी रिस्पेक्ट देम. सो बहुत सारे मजाक करते थे, जिस तरह इफ़ आई कैन शेयर अ गुड मेमोरी, मेरे बहुत अच्छे डियर टीचर हैं, दे स्टिल माई फेसबुक, वी टॉक रेगुलरली एंड वी स्टिल विश हिम द बेस्ट एंड ही इज़ अ गुड मेंटर टू मी. बट जब मैं स्टार्ट में आया एंड वी डिड नॉट लाइक देयर मेथोडोलॉजी, तो उनका एक टाइम और एक्सपीरियंस होता है. तो दोनों के यार अच्छा भी बच्चे हैं, इनको नहीं समझ आ रही, इनको आ जाएगी. बट हमें उस टाइम लगता है कि नहीं यार हम बहुत सियाने हैं, हम बहुत बहुत तोपे हैं हर स्टूडेंट की तरह. इफ़ यू रिमेंबर द ओल्ड कैंपस के शीशे ब्लैक होते थे. सो हम एग्जाम दे के निकले बाहर और उन्हीं टीचर का एग्जाम था बट वो क्लासरूम डिफरेंट थी, बट वो उस क्लासरूम में इन्विजिलेटर थे, हमें नहीं होता था. सो हम बाहर सारे क्लास में अपने ग्रुप वाले इकट्ठे हो गए, बुराइयाँ शुरू हो गए और जो हम बुराई कर सकते थे इम्तिहान की वो टीचर की हम कर रहे और काफ़ी देर हमने अपना दिल ठंडा किया. जब हमने दिल ठंडा करके फारिग हुए तो अचानक से ब्लैक विंडो खुली और बीच में से वो टीचर खड़े थे, कहते हैं यार अच्छा बच्चों ज़रा साइड पे हो जाओ. So we were so ashamed कि oh shit, but it was so nice of him that he forgave and eventually we learned कि okay हम wrong थे and we respect him. But of course उनका बड़ा पता, तो इस तरह की बहुत सारी stupid mistakes हुई हैं. There are countless examples like that. हाँ नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. और उस ज़माने के टीचर्स ना वैसे अब, क्योंकि अभी ज़ारे हमारे टीचर्स होते हैं या हम बात करते हैं, आई थिंक जो हमारे टीचर्स थे ना उन्होंने हमें रगड़ा खूब दिए, बट आई थिंक उस वक्त का रगड़ा ना हम कहते थे ये हम कर नहीं सकते. बट दैट टाइम को जो रगड़ा, मुझे याद है मेरे जो टीचर्स थे जो वो क्योंकि इंडस्ट्री में भी पढ़ाते थे, तो हम कहते थे मतलब कि हमारी टीचर्स ने टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं कहा कि तुम लड़की हो या लड़के हो, करना है सो करना है. जेंडर बाइस नहीं, अच्छे लड़कियां तो उनको आसान, लड़के तो उनको टफ चैलेंजेस देने, ऐसा कोई सीन ही नहीं था. हमें मतलब कि मेरे ग्रुप में सवाई लड़कियां थी,
एंड हम लोगों ने क्या क्या मतलब किन किन गलियों में जाके हमने अपने मार्केटिंग एड शूट किए, कैन से वेंडर से कैसे कैसे काम करें। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि आज हमें समझ आते हैं कि जब हम जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, तो डिस्पाइट कीपिंग अ जेंडर बिहाइंड, तो ये बहुत हमारे लिए वैल्यू एडिशन होता है। सो मुझे ये बताएं कि जब आप किसी बहरियंस की जब मुलाकात होती है सोशल गैदरिंग में, कोई मेमोरी याद आती है जब आप कहीं मिलते हैं कि अच्छा यार ये, या जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं, सो डू यू थिंक यू सी योरसेल्फ यार कि ये स्टूडेंट हमारे में और इनमें कितना डिफरेंस है? डू यू हैव दैट कंपैरिजन? आई थिंक वो अब तो वही फीलिंग आ गई ना जो हर एक जनरेशनल स्टोरी चलती आ रही है कि बंदे कहते हैं अच्छा अभी इतने, अब वो माल वैसा नहीं आ रहा और अब वो टीचर्स की क्वालिटी नहीं रही है। एक जनरेशनल गैप आता है तो हर जनरेशन में दिखा कि वी हैड इट द टफेस्ट और हमारा सबसे यूनिक था। तो आई थिंक हमें भी होता है कि नहीं यार तो वो बात ही नहीं। और ऑफकोर्स हम भी उस ज़माने में कोई इतने मैच्योर तो नहीं होते थे, हम भी बोंगे ही होते थे, तो वक्त के साथ साथ वक्त ने सीधा किया। तो इसलिए वो जो भी लगता है तो वही बात है कि जिस तरह हमारे टीचर्स ने हम पे, आई रिमेंबर अब कि यार फॉरगिव, और उनका कि उनको समझ आ जाएगी, तो वो एक लर्निंग कर्व की हमें रिलैक्सेशन दी। तो अभी जब हमें भी कुछ अजीब लगता है तो मैं भी यही फीलिंग अपने अंदर फाइट करता हूँ कि यार एक लर्निंग कर्व का हमें भी देना चाहिए। तो जैसा मर्जी अच्छा लगे बुरा लगे, दीज आर द फ्यूचर एंड दे विल इवेंचुअली गेट टू इट। दुनिया में सबसे अच्छा उस्ताद ज़िंदगी है, वो सिखा देगी। और जो मेमोरीज आती हैं, जिस तरह अगेन ये एंटरप्रेन्योर वाली चीज़ में उसने बड़ा हेल्प किया कि रातों को जागना, असाइनमेंट्स बनानी है, वो रगड़ा है और नहीं माफ़ करेंगे। और उस टाइम था कि इफ़ यू बिलो 2.5 गए प्रोबेशन, 2.2 यूर आउट। सो उनको नहीं, हम यार वो रगड़ा दिए जा रहे हैं, हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। सो सारी सारी रात जगना, काम करना, डिलीवर करना, एक हफ्ते में मतलब सिर्फ 3-4 घंटे सो के गुजारना, वो चीज़ आज हेल्प करिए। क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट जो जर्नी था, ये अगर उस टाइम रिलैक्स रहते और आराम से टाइम के मुताबिक काम करने की आदत होती तो शायद ये काम करने की हिम्मत ही ना होती। चलें, थैंक यू। बातें तो होती रहेंगी। नाउ वील बी हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम टू द शो। हम ब्रेक से पहले बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे कुछ टीचर्स की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हमें इन्होंने सुना और हम चाहेंगे कि आप हमसे दोबारा शेयर करें, क्योंकि टीचर्स की बातें तो होती हैं और एक और चीज़, टीचर्स की पढ़ाई नहीं, टीचर्स की डांटें याद रह जाती है। तो उससे एक हम किस्सा सुनेंगे। सो व्हाट वाज द थिंग? आई होप शी फॉरगिव्स मी फॉर दैट। तो बहुत सारी मेमोरीज थे, बहुत सारी, क्योंकि जैसे मैं बताया ना, मेरे को अच्छा बच्चा तो नहीं था, आई वाज नॉट अ वेरी नाइस बीबा बच्चा सा, स्टूडेंट टाइप, रेबेलियस एटीट्यूड एक था। तो मैडम सलमा हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, शी वाज अ वेरी वेरी नाइस टीचर, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी केयरिंग। लेकिन उस टाइम नहीं लगता, वो बहुत गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा। और टाइम तो वो उनके लिए वो डेडली था, वो बर्दाश्त नहीं करती थी। और मैंने ज़िंदगी में कभी टाइम पे नहीं आया। सो उनकी क्लास में हमेशा लेट होता, डांट पड़ती, तो मैं बिल्कुल थिन एज पे चल रहा था। तो एक दिन क्लास 2 इकट्ठी थी, मैंने कहा ओके आई एम लेट, अब मैं नहीं जा रहा, मैं अगली क्लास में खामोशी से घुसूंगा, ब्रेक होगी। तो जब ब्रेक हुई तो मैं गया, देखा शीशे से कि नहीं मैडम खड़ी हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़ा गुड, आराम से घुस गया। मैंने कहा अब सुकून में एंट्री मारूंगा, सेकंड क्लास जब होगी शुरू मैं बैठा हूँगा। आराम से बड़े मज़े से क्लास से चलते जा रहा, सारे मुझे हाई फाइव्स कर रहे और मैं बड़ा खुश हो रहा है कि आराम से। मैंने अचानक क्लास के बिल्कुल पीछे कोने में से ज़ोर से आवाज़ आई, आ गए आप। एंड आई वाज लाइक ओह, आई वाज फ्रोजन स्टिफ, लाइक आई डिड नॉट गिव, अब तो बम फट गया और आज तो मेरी खैर नहीं। एंड शी बस्टेड आउट लाफिंग के यार, लाइक दिस इज सो फनी, लाइक and she forgave me for that, so I'm very happy। वो एक बड़ी मेमोरी थी कि I'm done, मैं गया, दोबारा इस हरकत नहीं करनी, दोबारा इस हरकत नहीं करनी। एक और भी थी जिस तरह सर अली सही थे, was a very nice teacher। So economics में I believe in midterms I got 23 out of 25 at that time। For his class it was a big deal। So again late as usual, तो मैं बड़े आराम से आ रहा, तो सारी चीज़ें, सर आ गया माजिद, ये है माजिद। So I was like oh I hope, पता नहीं, मैं जहन में चल, पता नहीं कोई वीडियो तो नहीं देख ली, क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं। मेरे जहन में ना हर किस्म का सिनेरियो चल रहा है। आप है माजिद? मैंने कहा जी जी। अच्छा, बड़े आराम से बैठ गए। लाइक अल्लाह खैर करे, आज घर ना जाए, बात जो भी हो गया इधर ही मुक जाए। तो लाइक ओके, सो दिस इज योर रिजल्ट, यार यू डिड वेरी गुड। तो आपको इतनी देर से तलाश कर रहा था। लाइक ओह अच्छा, ओह वेरी गुड। सो वो मुझे था कि सारी क्लास हंस रही थी एंड आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो गया। सो दोज वर नाइस मेमोरीज। अच्छा, सो एक और सवाल, क्योंकि हमने आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात की, आप एज अ स्टूडेंट थे, देन यू वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड यू ऑल्सो वर्क विद डिफरेंट आइडियाज़। सो मुझे पता है चेंज के लिए जो आपने बात की, बिकॉज प्राइवेसी को आपने टारगेट किया, दैट्स द
the upcoming issue जो global issue हमारा है, ठीक. So as an achievement or as a challenge, what do you have to say about it? So जो हमने प्रोफेशनल सारा एक्सपीरियंस किया, what anything can teach us from history is कि you know the big change is going to come and you need to be prepared for it. हमने जो ज़ैप बडी बनाई, हमने ऑगमेंटेड रियलिटी को एक फील्ड उठते हुए देखा और हमने ऑगमेंटेड रियलिटी को बीच में डाला. हमने कायद-ए-आज़म के बीच में विजन्स बनाए और एलिमेंट्स बनाए विच कैन बी टारगेटेड टू द लोकल मार्केट. फिर हमने चैट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया विच कैन कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट देयर. और ऑफ कोर्स it has a few finishing touches left, but you know the idea is there. It's expandable and it's doing very good. So what you foresee in privacy is something there जो हमने इस पे bet की थी कि it's going to bring a lot of change. अभी तक people did not realize, and ये जब खबरें आना शुरू हो गई, disclosures आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा alert हो के okay जो blind trust था वो trust नहीं करना चाहिए था. अब second element आएगा कि इस privacy से खतरा क्या है. This is still an element that बहुत सारे लोग are still not aware कि okay what are the dangers associated with your data. अभी तो लगता है ना बड़ा सिंपल सा, अच्छा मुझे इश्तिहार दिखाते हैं, ओ चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, but it goes much beyond that. And this is not conspiracy theories, this is something that has led to GDPR, EU के उसके ऊपर हुई हैं, US में होने जा रही है, and I foresee a lot of such restrictions क्योंकि जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे you know the international market will start reacting. So big change is going to come. So अभी भी मैं ये foresee करूँगा कि you know start taking this seriously and start preparing क्योंकि that change will happen. So you can either be you know the rest of the world and start debating कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, हो गया, अच्छा ये तो पता था होना है, या you can be you know ahead of time and see कि ये होने जा रहा है and then you plan accordingly. That's interesting कि somebody from Pakistan, a student and from Behra University who foresaw this idea and who saw कि ये होने वाला है, you know आपने proactively रखा. That's a very interesting and a commendable thing, and I really appreciate कि you know you have done that. You have done a good job for the society. कि हम लोग तो बड़ा इसको chill ले रहे थे ना कि अच्छा कोई WhatsApp पे से भी चीज़ आ जाती, किसी ऐप से में कुछ share हो जाते, but इसके repercussions can be so huge. So when is the lab going to be launched? It has been launched. It has been recently launched. Yes, okay. It's available on iOS and Android. Okay, so the app is available on iOS and on Play Store. Yeah. So both the users of Android, of Apple and Android, they can use the app because हमारे बहरिया ने app launch की है. So please share the feedback because जब show on air होगा, you can share the feedback and you can share the feedback with Mr. Majid Aziz. So now since we are going towards the end of the show, what message you would like to give to Behra University, or if you think there is any improvement which you see? मैसेज अगर आप पुराने वाले स्टूडेंट वाले से पूछते तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते, बट नाउ यू नो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवरऑल इट्स बीन अ गुड प्लेस. ट्राई टू कीप द स्टूडेंट्स बैक एंगेज्ड. स्टूडेंट से भी होगा कि कीप द कमराडरी अलाइव, और अगेन सपोर्ट जिस तरह इनोवेशन सेंटर वगैरह बनाया है, दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, बट अब इनको नेक्स्ट फेज पे पुश करने की ज़रूरत है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड. Some things that might not make sense, but given जो future में होने जा रहा है, do those risks, do not you know remain too cautious about it and take those risks. मैंने भी जिस तरह पेटेंट्स के लिए आपसे जिक्र हो रहा था ब्रेक में, पेटेंट्स जाके बाहर रजिस्टर कराए, इंटरनेशनल मार्केट पे इंटरनेशनल लॉयर्स हायर किए. इट वाज अ वेरी रिस्की मूव. आज तो वो चले शुक्र है अप्रूव हो गए, तो देर वेरी गुड के यार हमारे पास पेटेंट्स भी हैं, बट बैक इन दैट डे कि तो आइडिया ही नहीं प्रूवन, तो इतना पैसा लगाना, बट यू नो हमने रिस्क लिया. तो ये रिस्क लेने की आदत हमें तो डाल दी है बहरिया ने, तो अब ने भी करें. दे डूइंग गुड. ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. द स्टूडेंट्स आर ग्रेट, द फैकल्टी इज स्टिल वेरी गुड, एंड यू नो टेक प्राइड इन व्हाट यू डूइंग. थैंक यू. और मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, बर्दाश्त करें. अभी ये वक्त भी गुजर जाएगा, एंड देन यू नो बिलीव मी यू विल रिमेंबर दिस टाइम इन अ वेरी फॉन्ड वे. सो अभी जो रगड़े लग रहे हैं शौक से खाएं, और लाइफ विल मूव ऑन एंड यू विल रिमेंबर दीज डेज एज गुड मेमोरीज. रिमेन फ्रेंड्स विद ईच अदर. These are going to be your best memories of your life. Thank you very much, Majid Aziz. It was lovely having you on the show, and we really look forward to the app and wish you good luck. And one thing which you've said, and I also like to add, hard work pays off. Ragda pays off, the struggle pays off. And you see, today we have a student who's an entrepreneur. So who knows, kal ko aap hi hame se koi is tarah ka idea lekar aaye. So thank you very much for watching the show, and we'll come back next week with another guest. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.